So let us continue our discussion on vectors. Basic Maths, lecture number 9. So in the last lecture हम लोगों ने vector start किया था. What we have seen in the lecture, we have seen why the vectors are required and what are the vectors. ठीक है, we have seen the representation of the vector. We have seen when two vectors are equal. So what are the condition for the two vectors to be equal? And then we have seen what is the angle between the two vectors. ठीक है, we have seen the addition of vectors that is different from the arithmetic addition, and we have seen the three laws in the vector addition. One is the triangle law, one is the parallelogram law, another one is the polygon law. और हमने देखा था polygon law is nothing but just it's an repetition of a triangular law only. ठीक है. Then after that we have seen the addition of vector through the analytical method. ठीक है, analytical method में हम लोगों ने magnitude देखा था, and then we have find out the direction of the resultant vector and the magnitude of resultant vector. Apart from that we have seen certain special cases जब हमारा जो एंगल है that is 0 degree, 180 degree and 90 degree, and उससे related हम लोगों ने last lecture में we have covered up some questions regarding this. ठीक है, जो आज का lecture है, आज हम start करेंगे अपना discussion unit vector, and we are going to see what are I vector, J vector and K vector, and how these three vectors in future how these three vectors are going to help us in writing any vector. ठीक है. Then we are going to see the component of vector. This is quite an important part because there are condition in the physical space. आपको जो direction of vector दी होती है that is given in at certain angle. ठीक है, उसको difficult होता है if you are going to go through with that direction. तो best easy तरीका होता है to break down into the component. Component can be the orthogonal component and the non-orthogonal component. But हम लोग जो देखेंगे, हम लोग right handed system use करते हैं, Cartesian coordinates, तो वो right handed orthogonal system होता है हमारा. तो we break down the component into x, y and z डायरेक्शन, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक अस मैथमेटिक्स ईजी. ठीक है, तो हमारी जो सॉल्यूशन है उसको ईजी कर देता है वो. ठीक है, तो इट्स बेटर टू विल सी व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एंड देन वील सी व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. विल सी कि कंपोनेंट्स को वेक्टर में किस तरीके से चेंज किया जाता है और वेक्टर को कंपोनेंट में किस तरीके से चेंज किया जाता है. वी आर सी द एनी vector if there is in the 3D space, and how we will find out the component of that vector, and we'll see the addition of a vector through its components. ठीक है, तो these are the concept we are going to cover up in the components of vector. ठीक है, तो ये जो component of vector है, unit vector है, extensively use करेंगे हम physics में. component of vector तो आप मान के चलो it is because in every chapter from the beginning आप kinematics से आप देखना शुरू करते हो, component of vector हर जगह यूज़ होगा. फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइंस का. ठीक है, एंड देन लेटली क्लोज करेंगे हम लोग. वी आर गोइंग टू सी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी द लेमीज थ्योरम. ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज लेक्चर. राइट, सो लेट्स कंटिन्यू. सो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कभी कभार हमें ज़रूरत होती है कि वी जस्ट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, वी डोंट नीड द मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड अ यूनिट वेक्टर. तो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर क्या होता है आपके, जिसके बोथ डायरेक्शन होते हैं और साइड बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. बट व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, देन आपका सेवियर होता है यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट विल ओनली स्पेसिफाई द डायरेक्शन. ठीक है, दैट विल ओनली गिव द डायरेक्शन. इट इज़ हैविंग द मैग्नीट्यूड वन मैग्नीट्यूड का होता है, ओनली स्पेसिफाई द डायरेक्शन. अनदर थिंग इट इज़ डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, एंड इट्स जस्ट द प्योर रेशियो. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. ठीक है, यूनिट वेक्टर आप इन यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, अगर आपका ए सपोज ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे, ए और उसके ऊपर एक हेड डाल दोगे, दैट इज़ व्हाट द यूनिट वेक्टर. और क्या फॉर्मूला होता है उसका यूनिट वेक्टर का, आपका ए वेक्टर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होती है. ठीक है, आपको अब डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करो, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड से मैंने इसका डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स आपका मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया और बस इसमें डायरेक्शन लगी. तो आपका ए यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, आपका वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से मैंने उसको डिवाइड कर दिया. आई विल गेट ओनली द डायरेक्शन. ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ जाती है मैग्नीट्यूड की. ठीक है, और आपको किसी वेक्टर को लिखना है, इफ यू हैव टू राइट डाउन एनी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर, सो एनी वेक्टर कैन बी रिटर्न इसका मॉड मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय योर यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से लिख सकते हैं, और डायरेक्शन क्या बताई जाएगी हमारे यूनिट वेक्टर से. यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं ए और उसके ऊपर कोई भी क्वांटिटी और उसके ऊपर हैट लगा दो, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द यूनिट वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई ओनली द डायरेक्शन, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस. राइट, नाउ वी कॉल IJK ऑर्थोगोनल सुपरस्टार. ठीक है, बिकॉज हम अभी आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और कंपोनेंट क्या होता है हम लोग ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में
ब्रेक करते हैं। और हमने जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, हम राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसमें वी टेक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑर्थोगोनल होते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। एक्स एंड वाई दे आर 90 डिग्री और उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारा जेड होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो वी व्हाट वी डू, वी असाइन आई जे के अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो प्लस एक्सिस में मेरा आई हो जाता है, ठीक है, जिसका यूनिट वेक्टर 1 होता है। तो ठीक, दिस इज 1, ठीक है, 1 इसका ये है एंड इट इज शोइंग द डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। J is showing me the direction towards positive y axis. Z is showing me the direction towards K is showing me the direction towards positive z axis, ठीक है। So it is showing you only the direction. Magnitude इन तीनों का 1 होता है। So this is quite helpful in mutually perpendicular right hand coordinate system. Right hand coordinate system के आपका अगर x ये है y ये है, ठीक है, this is x this is y, ये तो सिंपल है, आपका x ये हो गया y हो गया। तो मोस्ट ऑफ यू नो कि जो z होता है इट इज़ कमिंग आउट y, बिकॉज यू हैव टू सपोज दिस इज एक्स, तो आप अपनी फिंगर को राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो एक्स से वाई की तरफ, जहाँ पे आपका थंब आएगा दैट इज़ द प्लेस यू आर गोइंग टू पुट योर जेड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपका एक्स इस डायरेक्शन में है और वाई इस डायरेक्शन में, सपोज एक्स इस डायरेक्शन में वाई इस डायरेक्शन में, देन आपका जेड जो आएगा दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, ये जेड आ जाएगा इनसाइड द प्लेन जाएगा, ठीक है, बिकॉज एक्स से वाई की तरफ आप जब टर्न करोगे तो आपकी जो थंब आएगी दैट इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। अगर आपका एक्स इस डायरेक्शन में एंड वाई इस डायरेक्शन में, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, देन व्हेन यू आर गोइंग टू टर्न योर फिंगर फ्रॉम एक्स टू वाई, तो आपका थंब आएगा दैट इज इन बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन में, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट योर राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी यूज़ पॉजिटिव एक्स के लिए आई यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वाई के लिए जे यूज़ करेंगे, एंड पॉजिटिव जेड के लिए हम लोग के यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई क्या है आपका, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। आई क्या है आपका, ये जो यूनिट वेक्टर है आई, दैट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसकी डायरेक्शन हम लोग प्लस एक्स से डिसाइड करेंगे। सेम वे जे जो है दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिट जो इसकी मैग्नीट्यूड होगा 1 और इसकी जो डायरेक्शन होगी प्लस वाई। सेम वे इसकी यूनिट 1 होगा और इसकी डायरेक्शन होगी प्लस जेड, राइट, प्लस जेड होगी, राइट। सो कोई किसी भी वेक्टर को, अगर हमें किसी भी पॉइंट को, इफ़ दिस पॉइंट इज़ देयर इन योर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट दिस पॉइंट इन आर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जहाँ पे है, वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग आर ऑर्थोगोनल सुपरस्टार्स, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, 4 आपका एंड 2 आपके पॉइंट है, 4 एंड 2 पॉइंट है। सो हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, दैट इज़ दिस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको कितना यहाँ पे x में चलना पड़ता है, दैट इज़ योर 4, और y में कितना चलना पड़ता है आपको 2, ठीक है। तो दैट इज़ 4 और डायरेक्शन क्या चल रहे हो आप, x की डायरेक्शन क्या है मेरी i, प्लस y में कितना चले हो आप 2, और y की डायरेक्शन क्या देते हैं हम 2j, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन राइट एनी वेक्टर, not the vector, it is a point that you are writing it, and that vector if you are taking it, so if this is a vector we are taking this OA vector, ठीक है, for this point. Suppose you are having the point -2 and -3 is the position given. If you have to find out the vector for this point, इसका point का vector निकालना है हमने, इससे position निकालनी है, then how we can write it. इसको आपको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेट में क्या क्या करना पड़ा, पहले आप -x में चले, कितना चले -2, ठीक है, फिर y में कितना चले आप +3, ठीक है। तो ये लिखेंगे -2 और किस डायरेक्शन में चले, x को हम x नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे i, प्लस 3 टाइम्स y में कितना चले 3 और y की डायरेक्शन क्या है j, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन राइट। और 3D में होगा, 3D में आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपका 3D है z में है एंड देयर इज़ अ वेक्टर लाइक दिस, ठीक है, तो आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। आप x में कितना चलेंगे, y में कितना चलेंगे और z में कितना चलेंगे उस वेक्टर के टिप तक पहुँचने के लिए, ठीक है। That's how you can represent your vector in a rectangular coordinate system utilizing I, J and K vectors, ठीक है। now हमारा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को इस तरीके से सोचो, इट इज़ लाइक अ शेडो, ठीक है। सपोज इफ़ यू आर हैविंग दिस, ये इस तरीके से है, एंड इफ़ यू आर हैविंग दिस लैडर ऑन द वॉल, ठीक है, ये वॉल है आपकी ये और ये, ठीक है, ये लैडर लगी हुई है आपकी, दिस इज योर लैडर, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ दिस लैडर। कंपोनेंट का मतलब होता है यू यहाँ से आप लाइट थ्रो करो, जो ये लाइट की जो शेडो बनेगी लैडर की, दैट विल बी द कंपोनेंट, ठीक है। और आपको एक्स डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, दैट इज़ द वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू थ्रो द लाइट फ्रॉम एक्स साइड। व्हेन यू नीड इट्स एक्स कंपोनेंट चाहिए, देन यू हैव टू थ्रो द लाइट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। यहाँ से लाइट थ्रो करोगे ऑन दिस लैडर, तो जो एक्स पे इसका शेडो बनेगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस लैडर।
ठीक है। तो कंपोनेंट किस लिए यूज़ होते हैं? बिकॉज इन द रियल यूनिवर्स थिंग्स मूव्स डायगनली, दे विल डू, अगर ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस है तो थिंग्स विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, दे विल मूव इन अ डायगनल मैनर. टू रिप्रेजेंट दैट डायगनल मैनर मीन्स द फोर्सेस दे आर एक्टिंग ऑन द अपवर्ड एंगल एंड द फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, दे आर इन द 3D स्पेस एंड देन दे आर नॉट along the orthogonal x y or z axis, they are in the diagonal, they are along the diagonal. So if you are going to trying to calculate these diagonal directly, that will turn into a nightmare. ठीक है, मैथमेटिक्स उसकी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. तो रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल डायगनल वेक्टर इनटू 2 और मोर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, तो कोई भी वेक्टर होगा उसको विल कोई भी वेक्टर होगा वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू 2 और 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अलॉन्ग उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा. दैट लाइन अप परफेक्टली विद आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो बिकॉज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर. तो एनी वेक्टर इज बीन गिवन टू यू, अगर कोई भी वेक्टर दिया होगा यू कैन स्प्लिट दैट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सेस. तो हम अलॉन्ग द एक्स एक्सेस को लिखेंगे आई से. तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर आपका इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है सपोज 3. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, यू हैव टू स्प्लिट इट अलॉन्ग द वाई एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, यू हैव टू स्प्लिट इट अलॉन्ग द वाई एक्सेस एंड यू हैव टू स्प्लिट इट अलॉन्ग द जेड एक्सेस. ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन लिखेंगे आई जे एन के से. ठीक है, सो क्या हेल्पफुल होती है हम जब व्हेन वी इधर वी आर इन द 2D और 3D, व्हेनेवर वी आर इन द 2D एंड 3D, सो हमारे को व्हेन वी स्प्लिट इट इनटू when we split the components into orthogonal vectors x में या y में या z में, so we can make our complex problem easy. हम complex through 2D 3D problem को we can resolve it independently in 1D problems. ठीक है, that this concept we are going to use in the kinematics 2D जब पढ़ेंगे, तो there we are going to see कि how the independent कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे मोशन का, कि यू ट्रीट एक्स एंड वाई एक्सेस एज इंडिपेंडेंटली. एक्स का जो भी कंपोनेंट होगा वो वाई पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और वाई का जो भी कंपोनेंट होगा एक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा. सो दिस कॉन्सेप्ट कि हम 2D प्रॉब्लम को सिंपल 1D प्रॉब्लम में हम सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, सिंपल 1D प्रॉब्लम में हम लोग सेपरेट कर देंगे. 3D प्रॉब्लम को भी 3 1D प्रॉब्लम में हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द कंपोनेंट. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस कि हम 1D को सिंगल 1 डायमेंशन में लेके वी कैन सॉल्व इट देन. सो 2D में इफ़ यू आर हैविंग एनी वेक्टर विच इज़ गिवन इन 2D, तो 2D में अगर कोई वेक्टर दिया होता है वो क्या होता है, आपका इन्फ्लुएंस बताता है कि आपका किसको उस वेक्टर का दोनों साइड में कितना है. सपोज दिस वेक्टर इज़ बिन गिवन टू यू. ठीक है, ये एक्स वाई, इफ दिस वेक्टर इज़ गिवन टू यू, तो ये जो वेक्टर है ये इन्फ्लुएंस बता रहा है कि इसका एक्स पे कितना इन्फ्लुएंस है एंड वाई में कितना इन्फ्लुएंस है. ठीक है, कंपोनेंट इज शोइंग यू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस है इसका, दैट यू गेट इट फ्रॉम द शेडो. अगर यहाँ पे शेडो डालेंगे तो इसका कंपोनेंट आएगा. यहाँ से इसके टिप से इसका वर्टिकली ड्रॉप डाउन करोगे तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से इसके टिप से इसका वर्टिकल ड्रॉप डाउन करोगे तो ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा. तो वाई डायरेक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन इतना है और एक्स में इसका कंट्रीब्यूशन इतना है. ठीक है, नाउ वट यू कैन डू, यू कैन स्प्लिट आउट इन 1D. एक्स में 1D अलग दिखा दो, वाई में 1D अलग दिखा दो. ठीक है, तो सिंगल 2D, आपका सिंगल 2D जो है ये दैट कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 1D कंपोनेंट एंड 1D कंपोनेंट यू कैन it is easy to solve, right? So that's how we will see के in the coming जितना भी हम लोग फिजिक्स में आगे देखेंगे, काफ़ी बार हम लोग ये कंपोनेंट लेंगे जस्ट टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम. ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को ईजी बनाने के लिए. ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दिस पर्सन इज एट द बॉल इज देयर एट 0 origin पे है, then the person is going to kick the ball is at this point. now I wanted to know the this vector. ठीक है, at this point what is the vector of this, position vector of this ball. ठीक है, position vector का मतलब हो गया इस वेक्टर की पोजीशन फ्रॉम दिस. ठीक है, मतलब अभी देखेंगे आगे हमें यहाँ पे इस बॉल की पोजीशन बतानी है. इस बॉल की पोजीशन बताने के लिए मुझे बताना है कि किसके रिस्पेक्ट में फ्रॉम दिस ओरिजिन. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में बतानी है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, दैट इज़ इसका इस वेक्टर का this is the real vector, that is the r vector. Now we will do the component of this vector. The component can be done at angle also. अगर आपका ये वेक्टर है तो इसमें एंगल में भी कंपोनेंट कर सकते हो आप. ठीक है, जैसे हमने पैरेललोग्राम में देखा था ना, रिजल्टेंट क्या होता है, दैट इज a प्लस b. ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट क्या है, सिंगल वेक्टर है. आप इसका कंपोनेंट क्या कर रहे हो, ए और बी. दैट कैन बी एट सर्टेन एंगल पे भी हो सकते हैं ये भी, बट इट इज़ ईजी टू डू इट एट ऑर्थोगोनल. 90 डिग्री जब होता है तो दैट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम ईजिली, बिकॉज उसमें क्या होता है आपका एक्स और वाई हम लोग इंडिपेंडेंट बिल्कुल ले सकते हैं. तो एक्स के जितने भी फिनोमिना जो एक्स में हो रहे होंगे वो वाई पे इफेक्ट नहीं करेंगे और वाई में जितने भी फिनोमिना हो रहे होंगे वो एक्स में इफेक्ट नहीं करेंगे. सो दैट इज़ वाई वी टेक इट परपेंडिकुलर. ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी बॉल यहाँ पे पहुँच गई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट. ठीक है, इसके कंपोनेंट निकालने. तो कंपोनेंट विल बी कि जो आर का कंपोनेंट इन एक्स में कितना होगा, इसके टिप से यू ड्रॉप इट फ्रॉम इट्स टिप परपेंडिकुलर टू इट. तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आएगा दैट इज इज एक्स कंपोनेंट. ठीक है, अलॉन्ग द एक्स. ठीक है, वर्टिकल में यहाँ से इसके वाई में ड्रॉप करेंगे कंपोनेंट, वाई में ड्रॉप करेंगे इसका. तो यहाँ पे दिस कंपोनेंट इज इट्स वाई कंपोनेंट. ठीक है, तो अगर आर को लिखेंगे वी कैन राइट इट एज जैसे पैरेललोग्राम लॉ में भी लिखते हैं ना, दिस एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू रिजल्टेंट. तो आर किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, दैट इज एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब नाउ एक्स को वील राइट इट डाउन इन आर यूनिट वेक्टर. किस तरीके से लिखेंगे, एक्स जो है मेरा मैग्नीट्यूड है आई. ठीक है, प्लस वाई जे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर आर. दैट्स हाउ यू विल रिजॉल्व ऑल योर vector which is there in the space which is not along the axis diagonally है. तो we'll resolve them to make our calculation easy, and plus we can resolve them in 1D 1D and we can separately solve one dimension independently, right? Now rectangular component of vector. Rectangular component means the projection, the component जिसका we are going to take the projection of the vector on the axis. ठीक है, x और y axis पे we are going to take the component. ठीक है, so suppose this is your vector. ठीक है, this is your r vector which has been given to you which is making an angle theta. तो now I have to find out the component of this vector. तो component का सिंपल होता है आपका कि स्टार्टिंग से एंड पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. सो दिस इज माई एक्स कंपोनेंट. ठीक है, ये आपका एक्स कंपोनेंट आ गया. ठीक है, शेडो का इंट्यूशन लेके चलो. ठीक है, सेम वे इस ये वेक्टर है. नाउ इससे इसके टिप से और इसके जो एंकर पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एंड दिस विल बी योर कंपोनेंट अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन. ठीक है, अब दिस एंगल इज थीटा, तो वी कैन से दिस आर एक्स इज नथिंग बट आर कॉस थीटा. ठीक है, जो कि मेरा मैग्नीट्यूड आ गया. डायरेक्शन क्या आ गई, दैट इज आई. ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आई आ गई. नाउ दिस इज नथिंग बट योर आर साइन थीटा. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट इज़ नथिंग बट आर साइन थीटा. दिस इज योर मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, दैट इज जे. ठीक है, तो आर एक्स इज योर कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आर वाई इज योर कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस. और हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जो भी कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे इसके हेड से टेल, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. जो भी हमारा मे बी आपका ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरीके से, मे बी आपका एक्स वाई इस तरीके से भी दे रखा होगा. ठीक है, इस तरीके से भी दे रखा होगा. देन ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस. तो यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा. सपोज यहाँ तो हमें सिंपल इस तरीके से दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्स आ गया. अगर आपको इस तरीके का एक्सिस दे रखा है, इफ द एक्सिस इज लाइक दिस. ठीक है, ये एक्सिस इस तरीके का है. ठीक है, इफ द एक्सिस इज लाइक दिस देन हाउ यू विल डू दैट. In that also you will drop a perpendicular here and you will drop a perpendicular here. ठीक है, तो in this case you will get this is your rx. ठीक है, y के लिए क्या आएगा, nothing will come in the y. ठीक है, तो y का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा. ठीक है, so that's how you can resolve the vectors. ठीक है, right? So how we have written the vector here, the r vector we have written it r x को हमने लिख गया, दैट इज आर कॉस थीटा इंटू आई, दैट इज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड हेयर द डायरेक्शन वर्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड, दिस वाई में मैग्नीट्यूड एंड द जे डायरेक्शन आ गई इसकी. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन ब्रेक डाउन योर वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, now writing the component of vectors. ठीक है, if we are having this vector as a given, this vector is given, this vector and this vector, so इनके हमारे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, उनकी डायरेक्शन देखेंगे, इनके यूनिट वेक्टर्स भी देखेंगे. ठीक है, तो ये वेक्टर देखना है. तो इस वेक्टर के अगर मेरे को ये एक्सेस दे रखे हैं तो व्हाट आई विल डू, तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर करूँगा, इधर परपेंडिकुलर करूँगा, इधर परपेंडिकुलर करूँगा. ये आर एक्स आ गया, ये आर वाई आ गया. ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, दैट इज आर एक्स क्या होगा, फिर आर कॉस थीटा आई. ठीक है, और आर साइन थीटा जे, ये आ गया आर साइन थीटा जे. ठीक है, और मेरे को इसका आई हैव टू फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन ओनली. अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन चाहिए, आई जस्ट नीड द डायरेक्शन ऑफ दिस. तो डायरेक्शन के लिए क्या करूँगा मैं, इसके दिस इज माई वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, आर से डिवाइड कर दूंगा, ये आर कैंसिल हो गया, तो डायरेक्शन कम्स आउट टू बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे. ठीक है, नाउ अगर ये आपका है, दिस इज़ योर वेक्टर, तो नाउ इसका भी कंपोनेंट यहाँ ड्रॉप करो, इसका भी कंपोनेंट करो, और इधर यहाँ से इधर यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे आर एक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है, तो यू कैन से माइनस आर एक्स कॉस थीटा, वर्टिकल में इट इज़ पॉजिटिव, दैट इज आर साइन थीटा. ठीक है, नाउ अगेन इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा दैट इज आर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ठीक है, सेम वे लाइक वाइज वी आर गोइंग टू डू इट फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो इस वाले में क्या आएगा आपका, एक्स भी नेगेटिव में, माइनस आर कॉस थीटा और ये माइनस आर साइन थीटा. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस आर साइन थीटा. ठीक है, नाउ इसका यूनिट वेक्टर जो है, इसका यूनिट वेक्टर जो आएगा, डायरेक्शन आएगी इसकी, डायरेक्शन विल बी माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे. ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन, राइट. सेम वे फॉर द लास्ट वन, फॉर द ग्रीन वन ऑल्सो वी कैन सिंप्लीफाई in the same manner, right? So this is the way you can write the component of a vector in 2D.
3D में भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज द वेक्टर इज बिन गिवन इन अ 2D प्लेन, सो वी हैव रिटन डाउन इन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट. इफ 3D में होगा देन वी हैव टू राइट इट डाउन इन 3D कंपोनेंट्स. नाउ इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड, आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, अगर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स दे रखे हैं देन वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेक्टर. सो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वेक्टर? सपोज आपको आर एक्स कंपोनेंट दे रखा है आर कॉस थीटा, आर वाई कंपोनेंट दे रखा है आर साइन थीटा. ठीक है, नाउ वेक्टर क्या होगा इसका? वेक्टर विल बी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा? दैट इज आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. ठीक है, ये आपका आर एक्स में जो कंपोनेंट है और आर वाई में जो कंपोनेंट है उसका जे के साथ डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज बिन गिवन टू यू एंड दिस इज बिन गिवन टू यू. ठीक है, तो वट यू विल डू, यू रिटन डाउन द वेक्टर. ठीक है, ये आपका वेक्टर लिख सकते हैं आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. ठीक है, नाउ इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वेक्टर आ गया. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट सिंपल क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू योर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, दैट इज योर रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, तो हमने कंपोनेंट से क्या किया? पहले वेक्टर निकाला. ठीक है, वेक्टर सिंपल हमने निकाल दिया आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. ठीक है, आर एक्स क्या आपका आर कॉस थीटा, आर वाई क्या आपका आर साइन थीटा. ठीक है, ये हमारा वेक्टर आ गया. अब नाउ इसका मैग्नीट्यूड किया तो हमने सिंपल मैग्नीट्यूड कर दिया इसका. ठीक है, बिकॉज दिस आर 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वी कैन सिंपली अप्लाई द पाइथागोरस, दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, और इसके भी अब मेरे को डायरेक्शन चाहिए आर की, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? विल फाइंड आउट दिस एंगल. तो दिस एंगल विल बी tan थीटा कितना हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स. ठीक है, सो यहाँ से आर वाई बाय आर एक्स करेंगे तो विल गेट द डायरेक्शन. राइट, नाउ सेम वे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आपको 3D में लिखने हैं, सपोज दिस इज, नाउ इफ यू सी दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. नाउ हाउ द z इज गोइंग टू कम? यू टेक योर फिंगर फ्रॉम x एंड यू कर्ल योर फिंगर फ्रॉम x टू y, तो आपके z डायरेक्शन जो थंब आएगा दैट इज बीइंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो नाउ दिस इज द पॉइंट इज बिन गिवन टू यू 2, 3 एंड 4. नाउ इसका वेक्टर लिखना हो तो कैसे मैंने बताया किस तरीके से लिखेंगे? पहले x में कितना चलना पड़ा आपको? x में 2 चलना पड़ा. ठीक है, y में यहाँ तक पॉइंट में पहुँचने के लिए x में आपको 2 चलना पड़ा, y में कितना चलना पड़ा? 3 चलना पड़ा यहाँ पे, और z में कितना चलना पड़ा आपको? 5 चलना पड़ा. ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस वेक्टर. ठीक है, तो आपको ये वाला वेक्टर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस. ठीक है, सिंपल हम पॉलीगन लॉ लगा रहे हैं इसमें भी. ठीक है, तो ये हमारा दिस वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमारा वेक्टर आएगा ओ पी, दैट इज कम्स आउट टू बी 2i प्लस 3j प्लस 5k. ठीक है, दैट इज द वेक्टर दैट वी हैव गॉट फॉर दिस p इन 3D वेक्टर्स. ठीक है, सो 2, 3 एंड 5 दीज आर द कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. नाउ इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपल आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. ठीक है, इससे आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. राइट, नाउ आपके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स वाई एक्सिस होते हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे कि हम लोग को मोस्टली देखा जाता है दिस इज़ व्हाट वी ड्रॉ एक्स एंड वाई, बट इट कैन बी जो कंपोनेंट आपसे किसी भी 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे पूछ सकता है. ठीक है, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड होता है, दिस इज आवर स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे आपका ये ए वेक्टर है, तो यू कैन इजीली रिजॉल्व इट अलॉन्ग द एक्स अलॉन्ग द वाई, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा. ठीक है, अगर आपको ये 2 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करने पड़े, बिकॉज फिजिक्स में हम लोग देखेंगे वी हैव टू चूज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम सो दैट इट विल सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी दैट. तो अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपका ये ए वेक्टर है एंड यू आर चूजिंग दिस एज ए परपेंडिकुलर, तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, इस टिप से यू हैव टू ड्रॉप डाउन एंड इस टिप से you have to drop down along the y. ठीक है, and this is going to give you a cos theta. ठीक है, जो आपका along the x side along the given line, ठीक है, जिससे आपका एंगल दे रखा है along the given line, जिससे एंगल दे रखा है, from there you will get cos theta करोगे तो आप x कंपोनेंट आ जाएगा, और sin theta करोगे you will get the y कंपोनेंट. फॉर इंस्टेंस आपका ये वेक्टर दे रखा है एंड इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस एज अ एक्स वाई और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू आर टेकिंग दिस एज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. और आपको जो एंगल दे रखा है दिस इज द एंगल फ्रॉम द गिवन लाइन, तो जिस भी गिवन लाइन से एंगल है तो उस पर जो ड्रॉप करोगे आप परपेंडिकुलर यहाँ से, तो वो जो आएगा दैट इज ए कॉस थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर आएगा दैट इज ए साइन थीटा. ठीक है, नाउ आपको ये वेक्टर दे रखा है एंड जो एंगल दे रखा है दिस इज द एंगल इज बिन गिवन, तो एंगल वाली साइड पे जब आप ड्रॉप करोगे यहाँ से तो दैट इज गोइंग टू ए कॉस थीटा, एंड नाउ उसके परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करोगे तो दैट इज गोइंग टू गेट यू ए साइन थीटा. ठीक है, नाउ
दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन द इंक्लाइन प्लेन में भी काफ़ी यूज़ करेंगे. तो फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज दिस इज़ योर इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज़ द ब्लॉक इज बीन कीपिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन. तो इंक्लाइन प्लेन में अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन वी सेलेक्ट आर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर एक्स. ठीक है, तो जेड का होगा विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन विल बी योर जेड. ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इट. एक्स इज दिस, वाई इज दिस. ठीक है, तो इफ एक्स वाई इज दिस, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही होगी, दैट इज एम जी हेयर. तो वी विल ब्रेक डाउन द कंपोनेंट ऑफ एम जी अलॉन्ग आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी हैव सेलेक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सेलेक्ट किया है, तो इफ़ वी टेक द एंगल फ्रॉम हेयर. ठीक है, ये एंगल अगर हम थीटा लेके चल रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा, देन along the angle theta we have got the component mg cos theta, और perpendicular to this we have got mg sin theta. ठीक है, so that's how you break down the component. और धीरे धीरे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे लाइक दिस, तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट लेके यू हैव टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन. ठीक है, ना एक एग्जांपल देखते हैं. अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. जब भी नॉर्थ वेस्ट दिया होगा, कोई एंगल नहीं दे रखा, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो दिस इज़ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट मीन्स यहाँ से फ्रॉम हेयर इट इज़ 45 डिग्री. तो यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट 45 डिग्री. जब भी नॉर्थ वेस्ट लिखा है, कुछ नहीं दिया, तो वी विल एज्यूम 45 डिग्री. द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो वेस्ट से 15 डिग्री साउथ, तो दिस विल बी द लाइन. दिस इज माई शोर लाइन. दिस इज 15 डिग्री हो गया, दैट इज माई शोर लाइन. ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बोट अलॉन्ग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर. तो आपको जो कंपोनेंट निकालना है, ये आपकी जो वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट निकालना है. नाउ दिस इज नॉट योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ आपके जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एक्सिस ले रखे हैं आपने, अलॉन्ग द शोर लाइन और परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन, ये निकालना है. तो आपको दिस एंगल यू नो 45, दिस एंगल यू नो 50, तो टोटल एंगल 60 हो गया. तो ये वाला इधर की साइड में जो कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग द लाइन, जिस यहाँ से हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी 18 cos 60, और जो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी 18 sin 60. ठीक है, सो दैट इज देयर. तो v cos 60 इज अलॉन्ग द शोर लाइन एंड v sin 60 इज परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन. राइट, नाउ एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हमारे को दे रखे हैं ए वेक्टर दे रखा है, दैट इज़ 3i 4j. बी वेक्टर दे रखा है 7i 24j. ठीक है, सो दैट्स हाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द वेक्टर को हम इसी तरीके से, अगर हमारा 2D वेक्टर है, दैट मीन्स द मोशन इज हैपनिंग इन अ प्लेन. ठीक है, 2 एक्सिस में 2 एक्सिस से हमारा काम चल जाएगा 2D से. सो इन दैट वी कैन राइट इट इन ij. ठीक है, अगर 3D में है, अगर 3 एक्सिस में है, तो अगर 3D में कोई मोशन हो रहा है, देन इन दैट केस वी विल कंसिडर द वेक्टर, वी नीड टू कंसिडर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x y z. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2D मोशन हो रहा है, तो सिंपल हम प्लेन में लेके कर सकते हैं. तो आपका ए वेक्टर दे रखा है 3i 4j, दैट मीन्स आपका x में ये 3 मैग्नीट्यूड है और y में आपका 4 मैग्नीट्यूड है. सेम वे बी आपको दे रखा है 7 में, आपका x में 7 मैग्नीट्यूड है एंड y डायरेक्शन में आपका 24 मैग्नीट्यूड है. अब आपसे पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर c जिसका मैग्नीट्यूड विच इज़ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b, और वो पैरेलल टू a होना चाहिए. ठीक है, पैरेलल टू a होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड शुड बी, तो सी वेक्टर किस तरीके से लिखेंगे हम, सी वेक्टर विल बी नथिंग बट कि उसका मैग्नीट्यूड शुड बी बी और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए पैरेलल टू ए, मींस दैट इज़ द डायरेक्शन. ठीक है, तो ए का यूनिट वेक्टर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है बी के मैग्नीट्यूड से. तो बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, बिकॉज 90 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल. वी कैन पुट दिस 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया. नाउ आपको जो वेक्टर लिखना है, दैट इज बी डॉट ए की डायरेक्शन में लिखना है, तो आपको ए यूनिट वेक्टर चाहिए. ठीक है, आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो. आप इस वेक्टर से डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर दोगे तो विल गेट द यूनिट वेक्टर. ठीक है, नाउ विल सी क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ योर ए. ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा, विल गेट योर सी वेक्टर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ ए वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स. सो आपको ये वेक्टर दे रखा है ए, ये वेक्टर दे रखा है बी. ठीक है, नाउ ट्रायंगुलर लॉ करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ से हमारा रिजल्टेंट ये आ गया. ठीक है, ये तो ट्रायंगुलर लॉ से आ गया. नाउ हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे थ्रू द कंपोनेंट वेक्टर्स. ठीक है, तो आप ए का कंपोनेंट करेंगे, ए का कंपोनेंट यहाँ से किया, दिस इज योर ए एक्स, ये आपका ए वाई आ गया. सेम वे बी के कंपोनेंट आपने किए, दैट इज दिस इज योर बी एक्स एंड दिस वन इज योर बी वाई. ठीक है, तो ये आपका बी एक्स हो गया, ये ए एक्स हो गया, ये बी एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया एंड दिस वन विल बी वाई. ठीक है, नाउ आर जो होगा, आर इज़ नथिंग बट योर ए एक्स प्लस बी एक्स. ठीक है, और जो आर एक्स जो होगा दैट इज़ नथिंग बट योर ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई क्या होगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर ए वाई एंड बी वाई. ठीक
ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू द एडिशन, ठीक है। यहाँ से आपका आर जो आ गया, आर जो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आर एस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो गया आपका आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये हो गया आपका जे, ठीक है। ये आपका वेक्टर आ गया। नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपली यू डू ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे, आपके पास ये इसका यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन निकालनी है आपको, डायरेक्शन विल बी थीटा, टेन थीटा करना है, तो टेन थीटा में दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये क्या है आपका, दैट इज बी एक्स बी वाई प्लस ए वाई, ठीक है, बी वाई प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। सो इससे आपका टेन थीटा आ जाएगा। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन एक्सटेंड इट द सेम मेथड इन द 3D में क्या होगा आपका कि आपका R यहाँ पे आपको 3D में क्या होगा आपका Z कंपोनेंट भी होगा, यहाँ पे आपका X और Y कंपोनेंट है, देयर यू आर हैविंग द Z कंपोनेंट, तो व्हेन एवर यू आर हैविंग द Z कंपोनेंट यू जस्ट डू द K यू जस्ट इंक्लूड द K ऑल्सो, ठीक है। तो आपको A वेक्टर में दे रखा होगा जैसे AX प्लस AY प्लस AZ, ठीक है। सेम वे आपको B में दे रखा होगा तीनों डायरेक्शन में आई जे के, ठीक है। देन सिंपली यू हैव टू डू दैट कि एक्स जो आर एक्स आएगा दैट इज़ योर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आ जाएगा, आर वाई जो आएगा आपका ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई आ जाएगा, और आर जेड आ जाएगा आपका ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड आ जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वी कैन एक्सटेंड इट व्हेन द 3D इज देयर। सेम मेथड कैन बी एक्सटेंडेड व्हेन यू हैव हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स। अगर आपका प्लस सी भी है, एक और वेक्टर है, आपने ये प्लस ये कर दिया, नाउ रिजल्टेंट विल बी दिस, तो आप सेम इसका कंपोनेंट लोगे, फिर इसका भी एक्स कंपोनेंट लोगे और सी का भी एक्स कंपोनेंट लोगे, तो तीनों के कंपोनेंट एक्स के ऐड करोगे तो आप आर एक्स आ जाएगा, ठीक है, सॉरी आर एक्स आ जाएगा, दिस इज एक्स, और तीनों के वाई कंपोनेंट ऐड करोगे दिस और ये सी आ गया, ये और ये सी ले लो, ठीक है। और तीनों के वाई कंपोनेंट ऐड करोगे, दिस विल बी द वाई कंपोनेंट, दिस विल द वाई कंपोनेंट एंड दिस विल द वाई कंपोनेंट, तीनों के वाई कंपोनेंट ऐड करोगे तो यू विल गेट द आर वाई, ठीक है, ठीक है। सो सेम वी कैन डू द वेक्टर एडिशन बाय द कंपोनेंट्स ऑल्सो, ठीक है। विल सी द एग्जाम्पल। आपके पास ए वेक्टर दे रखा है दैट इज़ 3i माइनस 5j प्लस 7k 3D में दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आपको बोला है कि इन दोनों के एडिशन में, इन दोनों के रिजल्टेंट में, दोनों का सम किया मैंने a प्लस बी, इन दोनों में क्या ऐड करूँ कि जो फाइनल रिजल्टेंट आए दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स मैं a प्लस बी करूँ पहले, ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसमें एक वेक्टर ऐड करूँ c, और जो मेरा फाइनल इन सबका वेक्टर आ रहा है दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन, दैट विल बी द फाइनल आंसर इज शुड कम इन j, ठीक है। तो दैट शुड बी द आंसर, और उसको मेरे को c की वैल्यू निकालनी है, वट वेक्टर शुड आई ऐड, ठीक है, आई हैव टू ऐड वट वेक्टर शुड आई ऐड। तो मैं सिंपली a प्लस बी कर सकता हूँ, a प्लस बी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5i माइनस j और प्लस 4k, ठीक है। तो 5i माइनस j प्लस 4k, प्लस मैंने इसमें c वेक्टर ऐड किया और फाइनल मेरा रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज़ j, ठीक है। नाउ c वेक्टर आ जाएगा, आप इसको इधर ले जाओ एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ c वेक्टर, ठीक है। इससे आपका c वेक्टर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू आर हैविंग 3 वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर a b एंड c, ठीक है। ये आपका a वेक्टर दे रखा है विच इज़ अलॉन्ग x, b वेक्टर दे रखा है एंड c वेक्टर दे रखा है, ठीक है। ये आपके x एंड y एक्सेस दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द x एंड y कंपोनेंट, ठीक है। x एंड y कंपोनेंट सिंपली a का x कंपोनेंट तो यही होगा सिंपल जो दे रखा है 3, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, a का x कंपोनेंट 3, y कंपोनेंट 0, b का x कंपोनेंट कितना होगा b cos थीटा, y कंपोनेंट विल बी b sin थीटा, ठीक है, b cos sin थीटा y कंपोनेंट, b cos थीटा x कंपोनेंट। ना थर्ड दे रखा है मेरे को c का x कंपोनेंट क्या होगा माइनस c, दिस एंगल विल बी, ये आपका 90 है प्लस 30, दिस इज 60, तो माइनस c cos 60, सो c कितना है माइनस 10, तो माइनस 10 cos 60, और ये हो जाएगा 10 sin 60, ठीक है। तो इससे आपका x और y कंपोनेंट आ गए ABC के। नाउ ये आपको दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर p एंड q निकालना है वेयर c इज इक्वल टू p टाइम्स a प्लस q टाइम्स b, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो c दे रखा है दैट मीन्स c क्या होगा, cx इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ ax प्लस q टाइम्स ऑफ bx, ठीक है। cy क्या आएगा आपका, दैट इज p टाइम्स ऑफ ay प्लस q टाइम्स ऑफ by, ठीक है। cy और cx हम सेपरेट आउट कर देंगे ना, जब एक वेक्टर को क्या लिख सकता है ax प्लस ay, ठीक है। सेम वे मैं b वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ bx प्लस by, ठीक है। उसको p से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको q से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा मेरा cx प्लस cy, तो cx और यहाँ पे x को दोनों कंबाइन कर दिया, मेरा cx इज इक्वल टू px प्लस q bx, सेम में cy इज इक्वल टू pay प्लस q by। मेरे को ax bx ay by की वैल्यू पता है, ठीक है। ax
बी एक्स ए वाई बी वाई की वैल्यू पता है और मेरे को सी एक्स और सी वाई की वैल्यू पता है. विल जस्ट पुट द वैल्यू जहाँ पे मेरे दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो अननोन आ जाएंगे. वेल कैन गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. क्यू पी एंड क्यू की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सेस आर दिस. ठीक है, तो एक वेक्टर दे रखा है, ये इसके कंपोनेंट दे रखे हैं एक्स एंड वाई, और इसके जो ये वेक्टर है इसके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आ रहा है दैट इज़ n+1 एक्स में, और ये वाई में आ रहा है आपका 1. ठीक है. फिर ये कह रहा है मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किया 60 डिग्री से. यू रोटेटेड द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय 60 डिग्री. ठीक है, तो दैट मीन्स ये अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, ये रोटेटेड बाय 60 डिग्री. दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई. ठीक है, आपने रोटेट कर दिया. देन द कंपोनेंट चेंज टू n = 3 एंड एक्स कंपोनेंट हो गया 3 और वाई कंपोनेंट हो गया आपका एक्स कंपोनेंट 3 हो गया, वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट n हो गया, वाई कंपोनेंट 3 हो गया. तो नाउ ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर था. ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट विल बी दिस. तो नाउ दिस वेक्टर विल बी n और जो वर्टिकल होगा इसका वर्टिकल विल बी दिस वन विल बी 3. ठीक है, तो नाउ इट्स बीन आस्क्ड कि आपकी वैल्यू ऑफ n क्या है. ठीक है, तो जब भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हो रहा है तो इसके अंदर क्या है हमारा, ये इसकी लेंथ थोड़ा ना चेंज हुई है, लेंथ तो सेम ही है, लेंथ इसकी चेंज नहीं हुई. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे को दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी मेरे को एक्स वाई दे रखा है पहले वाले में भी, और जब चेंज किया तब भी मेरे को x1 y1 दे रखा है. तो मैं क्या करूँगा, दोनों की मेरी ये लेंथ तो सेम रहेगी. जब लेंथ सेम रहेगी तो ये वी कैन इक्वेट द दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ठीक है, वी कैन इक्वेट दिस. तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो पहले मेरा x क्या था, तो x, तो सपोज दिस इज़ योर डिस्टेंस इनिशियली इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, तो ये एक्स वाई कितना था, दैट इज़ n+1, 1. ठीक है, तो अपना इसका डिस्टेंस निकालना है. तो क्या करूँगा मैं, n+1 को होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अब मैंने दूसरे केस में क्या किया, आई हैव सेकेंड केस में मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया. ठीक है, नाउ दिस इज़ योर वेक्टर. अब ये आपका x हो गया एंड दिस विल बी योर y. ठीक है, तो नाउ फिर ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो ये कितना हो गया आपका n, ये हो गया 3. तो अगेन ये डिस्टेंस सेम है, तो फिर मैं क्या करूँगा, n² + 3 स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया बिकॉज मेरी लेंथ सेम रहेगी. ठीक है, नाउ इसको ओपन अप किया मैंने. ठीक है, तो फाइनली हमारे पास n की वैल्यू आ गई 3.5. ठीक है, जो कि हमें निकालना था. राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस का. ठीक है, आई हैव द वाटर एंड देन विल स्टार्ट. So next concept is direction cosines. So direction cosine means cosines of an angle, cosines of angle alpha, beta and gamma that the vector makes with x and y and z axis. So suppose this is your vector has been given. ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, z हो गया. तो cosine of the angle means जो ये angle बना रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ठीक है, कॉस ऑफ दिस अल्फा. ठीक है, दैट इज़ योर कोसाइन. ठीक है, नाउ फ्रॉम द वाई एक्सिस दिस मेकिंग बीटा, तो कॉस ऑफ दिस बीटा इज़ योर डायरेक्शन कोसाइन. वी रिप्रेजेंटेड बाय m. ठीक है, l हम लिखते हैं कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है, n हम लिखेंगे कॉस ऑफ गामा विच इज़ मेकिंग इट विद z एक्सिस. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर है अल्फा एक्स एक्सिस के साथ इट इज़ मेकिंग अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ इट इज़ मेकिंग गामा. ठीक है, नाउ इसका जो कॉस होगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. ठीक है, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. कॉस अल्फ़ा को हम n लिखते हैं, कॉस बीटा को हम लोग m लिखते हैं एंड n लिखते हैं. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, नाउ विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस डायरेक्शन कोसाइंस. सो इफ़ यू आर हैविंग दिस इज द मैग्नीट्यूड r दैट इज इक्वल टू x. आर वेक्टर अगर हमें लिखना है, दिस आर वेक्टर इज़ नथिंग बट ये आपका x, y, z है. तो आर वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, x i y j z k. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा दिस. अगर आपको कॉस अल्फा लिखना है, इसका कॉस अल्फा क्या होगा, ये x कंपोनेंट. ठीक है, अगर इसका मेरे को कॉस अल्फा लिखना है, सो इफ़ दिस इज़ द वेक्टर देयर. ठीक है, ये वेक्टर है आपका, इसका कॉस अल्फा लिखना है, तो दैट मीन्स कि दिस कॉस अल्फा विल बी दिस वेक्टर कॉस अल्फा. ठीक है, ये जो होगा r कॉस अल्फा दैट विल बी इक्वल टू इट्स कॉस दैट इज इक्वल टू दिस x. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू x. अगर मेरे को ये x कॉस अल्फा अगर अपने लिखना है, कॉस अल्फा क्या होगा इसका, दैट इज बेस ओवर ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, बेस क्या है आपका x डिवाइडेड बाय r. ठीक है, दैट इज योर कॉस अल्फा. ठीक है, सेम वे कॉस बीटा.
तो यहाँ से वी हैव ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर ऑन दिस ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, दिस विल बी 90 डिग्री, ठीक है। सो ये आपको होगा x, दिस इज r, तो दिस इज 90 डिग्री, तो आपको cos अल्फा आ जाएगा आपका, दैट इज x बाई r, ठीक है। सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट cos बीटा दिस, ये आपका 90 डिग्री है इस पर, तो cos बीटा आ जाएगा आपका, cos बीटा इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू y ओवर r, ठीक है। ये r हो गया आपका दिस OA का मैग्नीट्यूड। सेम वे आपका ये OA, ये cos गामा निकालना है, cos गामा इज नथिंग बट दिस इज दिस इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दिस इज़ 90 डिग्री है यहाँ पे, सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे देन दिस डिवाइडेड बाय योर सो ये आपका R है, दिस इज़ योर Z, और ये आपका ये वाला साइड है जो आपका ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका हो जाएगा cos गामा, यहाँ पे लिखेंगे तो cos गामा विल बी Z ओवर R, ठीक है। तो आपके आ गए cos अल्फा x ओवर R, cos बीटा आपका होगा y ओवर R, cos गामा हो गया Z ओवर R, ठीक है। ये cos अल्फा क्या है हमारा डायरेक्शन को साइन L, cos बीटा इज M एंड cos गामा इज माई N, ठीक है। नाउ इफ़ वी स्क्वायर एंड ऐड देम, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ दिस टर्म इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर टर्म, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हमेशा आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप इन द डायरेक्शन कोसाइन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ विल लिंक इट विद द यूनिट वेक्टर। सो सपोज यूनिट वेक्टर, अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे आप कि आप ए वेक्टर लिखोगे और उसका मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे, सिंपल, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, ए वेक्टर हमने देखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे एक्स बाई ए हमने किया, तो एक्स बाई ए क्या है हमारा, एक्स बाई ए इज नथिंग बट दिस, दैट इज इक्वल टू एल, ठीक है। दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सो दैट्स वाई वी कॉल देम द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। दिस ए क्या है आपका, ए इज़ नथिंग बट योर यूनिट वेक्टर विच इज़ गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। एंड कॉस गम अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वी आर दैट इज कमिंग अप इन इट्स डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट्स वाई इट्स बिन लिंक्ड विद डायरेक्शन को साइंस बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। नाउ इसकी जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर दूँ और इसकी जगह से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो हमारा दूसरा रिलेशन आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो दैट्स द सेकंड रिलेशन, राइट। नाउ वी सी अ रिलेटेड क्वेश्चन ऑन टू इट। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, बर्ड मूव्स विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, ठीक है। तो आपका जो ये होता है हमारा कि इफ दिस इज़ योर नॉर्थ, दिस इज़ योर साउथ, दिस इज़ योर ईस्ट एंड दिस इज़ योर वेस्ट, ठीक है। अपवर्ड होगा इसके बाहर की साइड में जो आ रही है स्क्रीन के, डाउनवर्ड होगा आपका जो अंदर की साइड में आ रही है, ठीक है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड हम इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ माई डाउनवर्ड एंड दिस इज़ माई अपवर्ड, ठीक है। तो अगर मैं 2D में देखो तो ग्राउंड पे ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड ये आ जाएगा, ये अपवर्ड आ जाएगा, ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ईस्टर्न लाइन से द बर्ड मूव्स एट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, ठीक है। तो इस लाइन से 60 डिग्री बना रहा है एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकली अपवर्ड लाइन, ये जो वर्टिकली अपवर्ड लाइन है इससे 60 डिग्री बना रहा है वर्टिकली अपवर्ड लाइन। इफ़ द ईस्टर्न डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सिस, अगर ये मैं एक्स एक्सिस ये ले लूँ, नॉर्दर्न डायरेक्शन इज टेकन एज वाई एक्सिस, इफ दिस इज वाई एक्सिस एंड अपवर्ड इज माई जेड एक्सिस, तो ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया ना इस तरीके से, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया, ठीक है। देन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो वेलोसिटी वेक्टर को लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आई नीड वी को लिखने के लिए वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ठीक है, ये तीनों चाहिए मेरे को। मेरे पास वी एक्स है, वी एक्स हमारे पास आ जाएगा बिकॉज मेरे को वी दे रखा है, उसका कॉस अल्फा मैं करूँगा, ठीक है। इसके साथ मेरे को जो वेक्टर है उसका कॉस अल्फा करूँगा तो मेरे पास वी एक्स आ जाएगा। सेम वे कॉस बीटा करूँगा वी वाई आ जाएगा। कॉस गामा करना है मेरे को वी जेड निकालने के लिए, गामा मेरे पास है नहीं, गामा हमारे को नहीं दे रखा, बट मेरे को रिलेशनशिप पता है, डेट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों मेरे को दे रखे हैं, तो मेरे पास यहाँ से गामा आ जाएगा, तो मेरे पास जैसे ही गामा आ जाएगा तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो वी एक्स वी वाई आपको पता है, वी एक्स इधर है, वी वाई इधर है, वी एक्स वी वाई आपको पता है, यू कैन सिंपली गेट द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इट हेयर। तो फर्स्ट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू आपको एक्स एक्सिस के साथ 60 दे रखी है और गामा की वैल्यू आपके पास 60 दे रखी है अपवर्ड, सॉरी गामा दे रखा है आपको, बीटा नहीं दे रखा, दैट इज़ वाई डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से बीटा आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 45 डिग्री 1/√2 आ जाएगा। नाउ वी की वैल्यू को वी कॉस अल्फा वी कॉस बीटा वी कॉस गामा, ठीक है। तो वी इज़ गिवन 20, कॉस अल्फा इट्स बीन गिवन टू 60, इट विल यहाँ पे 1/2 होगा, ये एक्स हमारा और जेड में 1/2 है ना, cos 60 इज 1/2 ना, तो वी कॉस अल्फ़ा, तो वी हमारे पास ये है, कॉस अल्फ़ा इज़ 1/2 1/√2 और 1/2 ये होगा, ठीक है। सो देन दिस इज़ द माई वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर का। सो पोजीशन वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग अभी देखेंगे, बट आपको हिंट देने के लिए कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना होता है हमारे को, फिजिकल फिनोमेना में सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी अगर आप मूव कर रहे हो तो उस ए टू बी के मोशन को बताने के लिए कि मोशन कितना दूर हुआ है, अगर मैं पूछूँ कितना दूर हुआ है तो एक इट विल बी सब्जेक्टिव थिंग, एक बोलेगा कि एक के पर्सपेक्टिव में बोलेगा अगर 1 किलोमीटर है, अगर कोई बहुत ज़्यादा रनर है, मैराथन रनर है, तो 1 किलोमीटर को बोलेगा ये तो बहुत छोटा है, अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग द डायमेंशंस, अगर आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है तो वो बोलेगा बहुत छोटा है जो भी मैराथन रनर है। अगर किसी छोटे से बच्चे से पूछोगे वो कहेगा 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस चला है फॉर इंस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो उसको बोलेगा बहुत बड़ा है। तो बड़ा छोटा तेज धीरे, ये सारी सब्जेक्टिव टर्म है, उस सब्जेक्टिव टर्म्स से निकलने के लिए ही हमारे को वी नीड टू डू द मेजरमेंट, ठीक है। प्रॉपर मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो प्रॉपर मेजरमेंट किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम जो कह रहे हैं कि लंबा है छोटा है, किसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, सो दैट मेजरमेंट हम जिसकी कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसको हम कोई भी चीज़ को जो मेजर कर पाएँ दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में वी डिफाइन वी रिलेट द फिजिकल फिनोमेना थ्रू द फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि हम मेजर कर पाएँ, ठीक है, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी होती है एक, ठीक है, विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द स्पेस फ्रॉम द आर्बिट्ररी चोजन ओरिजिन, ठीक है। कोई भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, आई टेक द आर्बिट्ररी चोजन ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट की जो भी पोजीशन होगी दैट डिपेंड्स आपने ओरिजिन का लिया। अगर मैं ओरिजिन ये ले लूँ, ठीक है, दिस इज़ माई ओरिजिन देन दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर इसी का मैंने ओरिजिन और ये मैंने ओरिजिन ले लिया देन दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर, अगर मैंने ये ओरिजिन ले लिया देन दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पोजीशन वेक्टर की पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन द स्पेस इट्स विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्ररी चोजन ओरिजिन इन, ठीक है, आर्बिट्रली चोजन ओरिजिन से, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट और ओरिजिन से जो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ व्हाट माई मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज के फ्रॉम द ओरिजिन और जो दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से टुवर्ड्स द पॉइंट जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ माई पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सपोज ये वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, दैट इज यू हैव टू राइट डाउन कि यहाँ पोजीशन तक पहुँचने के लिए आपको कि एक्स में कितना चलना पड़ा, वाई में कितना चलना पड़ा, जेड में कितना चलना पड़ा। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपने एक्स में कितना चला एक्स नॉट, फिर आपने वाई में कितना चला दैट यू हैव गॉन अप टू वाई नॉट, और जेड में कितना चला जेड नॉट, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर को आपने ऐड कर दिया तो फाइनली यू गेट योर रिजल्टेंट वेक्टर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये वेक्टर चाहिए तो अगर आपको अल्फा बीटा गामा दे रखा है तो ये आपको अगर आर है तो आर कॉस अल्फा इज़ योर एक्स नॉट, आर कॉस बीटा इज़ योर वाई नॉट एंड आर कॉस गामा इज इक्वल टू योर जेड नॉट। ये अभी हमने देखा है डायरेक्शन कोसाइंस में, ठीक है। Now you can get the value of your position vector r is equal to r cos alpha I, r cos beta j, r cos gamma k, ठीक है। So that is what we are asking, how much you are moving parallel to x, y and z axis to reach to your position, ठीक है। तो याद रखना it will always be with respect to the arbitrary chosen origin। आप ओरिजिन कहाँ पे लोगे वो डिसाइड करेगा। आपने ओरिजिन दूर ले लिया तो आप x में, y में, z में डिफरेंट यूनिट्स चलोगे देन योर पोजिशन वेक्टर विल बी चेंज। सो इट डिपेंड्स अपॉन द आर्बिट्ररी चोजन ओरिजिन आपने क्या लिया है, ठीक है। 2D के अंदर अगर आप देखोगे, 2D के अंदर इफ़ वी आर हैविंग दिस यूनिट वेक्टर this point in a space and you have been asked to find out the position vector of this, so we are taking this as an origin। तो यहाँ से x में इतना चला और y में इतना चला टू रीच दिस, तो x कितना हो गया आपका r cos अल्फा और y कितना हो गया r sin अल्फा। तो वी कैन राइट इट डाउन
r cos alpha I, r sin alpha j, and we can represent it in 2D. So this is important. The value depends upon the reference point which we are taking it as an origin. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? हमने देखा पोजीशन वेक्टर, ये हो गया सपोज ए एंड बी, इनका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कि इसका मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है. तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी आई हैव टू टेक आउट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट देन द ओरिजिन. ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, देन आई विल कॉल इट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सपोज आई हैव टू फाइंड आउट आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का तो ये हो गया आर बी. ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये हो गया ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए का हो गया फ्रॉम द ओरिजिन आर ए. नाउ हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विल बी विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विच इज़ नॉट द ओरिजिन. तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू ए. तो विद रिस्पेक्ट टू ए आई हैव टू फाइंड आउट द I have to find the position vector of B, and that is what we call the displacement vector. ठीक है, not from the origin. अगर origin से है तो position vector, अगर किसी और reference point से है then we call it a displacement vector. ठीक है, so position of B with respect to A is called the displacement vector. Position of B with respect to O, that is origin, what we call the position vector. ठीक है, तो इसका displacement vector क्या होगा? That is R B minus R A. ठीक है, that is its displacement vector. ठीक है, ये आप इससे देख सकते हो, दिस फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ. ठीक है, तो ये आर ए प्लस आर बी ए दैट विल बी इक्वल टू योर आर बी. ठीक है, तो आर बी ए कितना हो जाएगा आपका? आर बी ए इज़ नथिंग बट इक्वल टू आर बी माइनस आर ए. ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखो कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जहाँ पे जैसे बी का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फ्रॉम द ए, जैसे हमने देखा था ओरिजिन से टूवर्ड्स द पॉइंट एरो जाता है, तो यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है. तो फ्रॉम द ए टू टूवर्ड्स द पॉइंट जाएगा. ठीक है, जहाँ पे एंड हो रहा है तो दैट इज़ योर आर टू वैक्टर. सपोज दिस इज वन इज योर आर वन वैक्टर, तो जहाँ पे एंड हो रहा है दैट आर टू माइनस आर वन हमें करना होता है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीन्स आर वन के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू मीन्स आर टू माइनस आर वन. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट विल बी आर बी माइनस आर ए. तो आर बी क्या है आपका? यू कैन डू द कंपोनेंट ऑफ आर बी. आर बी के कंपोनेंट क्या होगा? एक्स बी, वाई बी, जेड बी. ठीक है, तो एक्स बी हो गया आपका ये एक्स डायरेक्शन में जितना चला, वाई इस डायरेक्शन में चला और जेड इस डायरेक्शन में चला. ठीक है, तो ये आपका एक्स बी, वाई बी, जेड बी हो गया. सेम वेज के हो गए तीनों कंपोनेंट, एक्स ए वाई ए जेड, एक्स ए वाई ए जेड ए. एंड इफ यू डू माइनस ऑफ दिस यू विल गेट द पोजिशन वैक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, और किसी पॉइंट के अक्रॉस निकालना होता है, सपोज दिस इज योर पॉइंट सी, तो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी हमें निकालना है. तो दैट विल बी पोजिशन आर बी माइनस आर सी. ठीक है, आर बी माइनस आर सी. तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? दैट इज सी की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो दिस इज द डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी. सो इन इंसेक्ट क्रॉल फ्रॉम ए टू बी. इंसेक्ट यहाँ से ये ए से बी जा रहा है. ठीक है, ये इस तरीके से पहुँचा ए से बी. ठीक है, सो ये जिस तरीके से गया दैट वी कॉल द स्केलर क्वांटिटी. और वेक्टर एडिशन वेक्टर क्वांटिटी लेनी है, तो वी जस्ट हैव टू टेक वी हैव टू टेक द नेट कितना मूव किया यहाँ से ए से बी तक. ठीक है, तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस लेक्चर. सो बी इज़ द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लांट फेस. तो इसका स्लांट फेस का सेंटर है ये. ठीक है, दिस इज द सेंटर. तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, तो वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस. हमारे को ये पता लग जाएगा फ्रॉम द सेंटर है, तो वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट. तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी, फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ए और बी का. अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस इंसेक्ट. दैट मीन्स पोजीशन जहाँ पे पहुँचा फाइनली बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है. तो दैट विल बी आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज नथिंग बट आर बी माइनस आर ए. ठीक है, तो मेरे पास आर बी और आर ए तो मैंने निकाल लिया विद द पोजीशन वेक्टर एंड वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, तो ये पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट कितना होगा? दैट इज हाफ ऑफ दिस. ठीक है, ये कितना है आपका? एक्स यहाँ पे 0 है एंड दिस इज योर 3. ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 3/2. एक्स हो गया 3/2, वाई हो गया आपका 1. ये पॉइंट कितना ऊपर है यहाँ से? दैट इज़ ये टोटल हाइट इसकी 2 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? हाफ पे है ना, तो हाफ कितना हो जाएगा? 1. एंड इसका जेड एक्सेस कितना हो जाएगा? जेड एक्सेस इज इन दिस डायरेक्शन, तो जेड एक्सेस 1 है इसका, तो इसका हाफ हो जाएगा 1/2. तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा बी का 3/2, 1, 1/2. तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं हम सेंटर से. तो इसका ये वाला पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, दैट इज़ 0 I 2j प्लस के. इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे फ्रॉम सेंटर, तो इट विल बी 3/2 I प्लस j प्लस 1/2 के. ठीक है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स ए के रिस्पेक्ट में हमें बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है. दैट इज दिस, दैट्स आई हैव टू डू आर बी
माइनस आर ए करना है, ठीक है। तो आर ए मेरे पास है ही, ठीक है, दैट इज़ दिस, आर बी ये है, तो आर बी माइनस आर ए करना है, तो वी आई गॉट दिस, ठीक है। नाउ इसका मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वी कैन डू द मैग्नीट्यूड। आपका इसका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द इरोडोव। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी थोड़ा वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। कुछ एक चीज़ें होंगी जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अभी आपको थोड़ा नहीं भी समझ में आएगा, कोई बात नहीं, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के डीप में भी जाएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग फील करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या इंट्यूशन होती है रिलेटिव वेलोसिटी की, और किस तरीके से अगर कोलिजन होगा तो किस तरीके से उसको प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो अभी मैं उसको बता दूंगा, अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो इन द कमिंग लेक्चर्स जब हम काइनेमेटिक्स के 1D 2D के देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और कोलिजन के कॉन्सेप्ट काफ़ी इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके 2 पॉइंट मासेस दे रखे हैं, 2 पॉइंट मासेस 1 and 2 मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v1 and v2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 and r2। सो सपोज दिस आर द पॉइंट मासेस, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। नाउ ये कह रहा है ये v1 से मूव कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ हमसे पूछा है कि सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द कोलिजन ऑफ द पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस के कोलिजन की मेरे को कंडीशन बतानी है दोनों की, ठीक है। तो नाउ अगर मेरे को कोलिजन निकालना है, सो हम लोग देखते हैं फॉर द कोलिजन इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट के विल फाइंड आउट द वेलोसिटी रिलेटिव, फर्स्ट विल टेक द वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट मीन्स आई एम मेकिंग इट स्टैंड स्टिल। जो v1 से मूव कर रहा है ये अब रेस्ट पे आ गया, ठीक है। रेस्ट पे आ गया मीन्स रेस्ट पे लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे फ्रेम पे इधर इसको -v1 से -v1 देनी पड़ेगी, सेम वे फिर मेरे को एक्जैक्टली इस पर भी -v1 देनी पड़ेगी, ठीक है, -v1, ठीक है। नाउ इसका और इसका जो मेरा रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी वी बी और v2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये समझ में आया ना। तो इसको देखो, पहले ये मेरी v1 से जा रही थी, अब मेरे को क्या करना है, इसको पहले मैं रेस्ट पे लाऊंगा, मैं निकाल रहा हूँ v2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले 1 को रेस्ट पे कर दिया, 1 को रेस्ट पे करने के लिए क्या किया मैंने, इसको सेम वेलोसिटी इधर दे दी, तो ये रेस्ट पे आ गया। अब सेम वेलोसिटी मेरे को सुपर इम्पोज करनी पड़ेगी इसके ऊपर भी, ठीक है। ये भी मेरी v1 मैंने इस डायरेक्शन में दी और ये मेरी v2 है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा v1 और v2 का, ये पैरेललोग्राम बनना है, तो दिस शुड गो इन दिस डायरेक्शन फॉर द कोलिजन, बिकॉज ये तो रेस्ट पे है, तो इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ताकि ये यहाँ पे इसको हिट कर जाए, ठीक है। ये तो रेस्ट पे आ गया ना, तभी तो ये हिट करेगा जब इसके दोनों का रिजल्टेंट, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया तो कभी हिट ही नहीं कर पाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा कभी हिट नहीं कर पाएगा, तो इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन टू हिट इट, ठीक है, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट, अगर मैं ये डायरेक्शन कौन सी है, दैट इज़ इफ़ वी आर टेकिंग इट के अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूँ 2 का 1 से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूँ तो r2 माइनस r1 है, ठीक है। दैट इज़ इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना, ये 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज़ r21, ठीक है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है r21 का, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, r21 का इस डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है, बट मेरी वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो इट विल बी सेम डायरेक्शन होगी बट नेगेटिव होगी, ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन का मतलब फील यही होगा जैसे वेलोसिटी की जो मेरे रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी बट मेरी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी पैरेलल है, सो विल डू द माइनस साइन ओनली, ठीक है। तो हमारा अगर हम देखें v21, ठीक है, v21 क्या होगा, दैट इज़ v2 माइनस v1, ठीक है, ये वेक्टर डाल दिया हमने, ठीक है। नाउ इसका हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो v21 की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय इसके मॉड से मल्टीप्लाई, मॉड से कर देंगे v21 मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने किया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1, ठीक है। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू योर माइनस टाइम्स ऑफ r21, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ r21 होना चाहिए। तो माइनस टाइम्स ऑफ r21 कितना हो गया, दैट इज़ माइनस r2 माइनस r1 का, ठीक है। अब इसका माइनस टाइम्स हो गया तो r1 माइनस r2 हो गया। अब इसका डायरेक्शन जो होगी दैट इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा मॉड से, दैट इज़ r1 माइनस r2, ठीक है। तो मेरा इक्वल आ गया, दैट इज दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 डिवाइड बाय r1 माइनस r2। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, दिस ऑप्शन, नहीं, ये r1 माइनस r2 होगा, ठीक है। नीचे गलत लिखा है, r1 माइनस r2 हो गया एंड दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। r1 माइनस r2 डिवाइड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है, बिकॉज आपका
v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड इट शुड गो इन दिस डायरेक्शन। और अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इसका पोजीशन इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, इस वाले पॉइंट के, तो ये क्या आएगी डायरेक्शन, दिस विल बी डायरेक्शन ना, दिस विल बी द डायरेक्शन। और मेरे को अगर इसी डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए तो मैं इसका पोजीशन इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ये निकालूँ तो कितना आएगा r1 माइनस r2, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, और मैं इसके मॉड से कर दूँ r1 माइनस r2, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये डायरेक्शन जो होगी यही सेम डायरेक्शन तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी की होनी चाहिए, ठीक है, दैट वी विल डू इट v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये हमारा दोनों इक्वल आने चाहिए, तो दिस इज द आंसर, ये r1 माइनस r2 होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा है, ये देख लेते हैं, लेमीज थ्योरम। सो लेमीज थ्योरम क्या कहती है हमारी कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपका ट्राइंगल इन ऑर्डर दे रखा ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, ठीक है, दे आर इन ऑर्डर, ठीक है। सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर इज 0 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 वेक्टर। दैट मीन्स अगर ये तीनों मेरे ऑर्डर में हैं, ठीक है, देन ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ठीक है। तब फिर ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ए का जो है ए का मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एंगल बिटवीन देम, जो दूसरे बाकी के दोनों वेक्टर हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, तो द एंगल बिटवीन देम, सॉरी द एंगल बिटवीन द अदर 2 वेक्टर बी एंड सी के बीच में जो एंगल, अब जो एंगल होगा दिस इज नॉट द एंगल, ठीक है, बी और सी का एंगल क्या होगा, हमें टेल टू टेल ज्वाइन करना है, तो ये टेल हो गई, तो इसको मेरे को आगे मूव करना पड़ेगा, दिस इज द टेल ऑफ बी, ठीक है, तो ये हो गई, तो दिस इज द एंगल अल्फा, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज नॉट द एंगल बिकॉज दिस एंगल ये हमें टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो हमारे को क्या कह रहा है कि जो आपका ए का मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल टू योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अल्फा विच इज़ द एंगल बिटवीन द अदर 2 वेक्टर्स, तो बी और सी के बीच का एंगल, ठीक है। सेम वे जो मॉड ऑफ सी दैट इज सी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए और बी का जो एंगल, ए और बी का एंगल कितना हो जाएगा, ए को मैं आगे करूँगा, नाउ टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, दिस इज द एंगल, ठीक है। तो ये याद रखना, द एंगल शुड बी बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है, वी कैन राइट इट डाउन ए डिवाइड बाय साइन अल्फा is equal to b divided by sin beta is equal to c divided by sin gamma, ठीक है। वी कैन राइट डाउन द लेमीज थ्योरम लाइक दिस, बट द कंडीशन इज कि तीनों जो मेरे वेक्टर होने चाहिए दैट शुड बी साइक्लिक, ठीक है, दैट शुड बी क्लोजिंग, ठीक है, ये यहाँ पे इन द ऑर्डर होने चाहिए एंड दैट शुड बी क्लोजिंग, राइट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो हमारे को गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2, ठीक है। तो a और b दोनों मेरे को इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, ए बी इक्वल है, थर्ड जो का मैग्नीट्यूड है दैट इज √2 टाइम्स ए, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू √2 टाइम्स बी, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये ए है एंड ए, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बट नाउ ये एंगल इज नॉट बिटवीन द, ये जो एंगल है दिस एंगल इज़ नॉट बिटवीन द वेक्टर्स, तो वेक्टर के अगर मेरे को ए लिखना है, ए के इसका ए लिखना है, ठीक है, और नीचे जो एंगल लिखना है साइन ऑफ, तो यहाँ पे जो एंगल लिखूँगा दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड सी, वेक्टर बी एंड सी के बीच में टेल टू टेल ज्वाइन कराने के लिए ये एंगल होगा, तो दिस एंगल इज नथिंग बट 180 माइनस अल्फा, ठीक है। सो द एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा, बट 180 माइनस अल्फा इज बेसिकली योर साइन 180 माइनस अल्फा इज बेसिकली योर अल्फा ओनली, साइन अल्फा ओनली, ठीक है। तो लेमीज थ्योरम हमने अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे को और एक और चीज़ दे रखी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, ठीक है, और ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो गामा आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। नाउ यू कैन अप्लाई द लेमीज थ्योरम इनटू इट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, ठीक है, बाकी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। तो विल अप्लाई द लेमीज थ्योरम, ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं, सी क्या है मेरा √2 बाई ए साइन 180 माइनस 2 अल्फा, साइन 180 माइनस 2 अल्फा विल बी साइन 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास साइन 2 अल्फा को आप लिख दो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली बचेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, दैट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा मेरे पास 45 हो गया, बीटा 45 हो गया, एंड द गामा विल बी योर 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द एंगल, राइट। नाउ हमें एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने हैं ना हमने, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी दिस, ठीक है, तो दैट विल बी दैट एंगल विल बी दिस एंगल विल बी दिस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन
सो दिस एंगल विल बी बिटवीन ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा, ठीक है। ए और बी के बीच में हो गया 180 माइनस गामा, गामा कितना हो गया आपका 90, तो दिस कम्स आउट टू बी 90। बी और सी के बीच में देखते हैं, बी और सी के बीच में एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। सेम वे हमारा इसका भी 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल, दीज आर द कॉन्सेप्ट फॉर टुडेज लेक्चर। लेट मी जस्ट चेक, हमने कॉन्सेप्ट सारे देख लिए ना। हमने यूनिट वेक्टर देख लिया एंड आई जी के का रोल देख लिया, देन वी हैव सीन द कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कन्वर्जन देख लिया, 3D में देख लिया, एडिशन ऑफ विद द कंपोनेंट देख लिया, डायरेक्शन कोसाइन देख लिया, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देख लिया एंड द लैमिस थ्योरम देख लिया, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो वेक्टर में वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर पार्ट। नाउ ओनली वन मेजर टॉपिक इज बीन लेफ्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू यूज इट quite often, ठीक है। That is, I would say that is the 50%, 50% is over, that is the 50% product of the vector is the 50%, because those we are going to use it across all the chapters in across many chapters in physics, ठीक है। So दो प्रोडक्ट देखेंगे हम, वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट को you have to be very much involved in the cross product, because it is like the base for your rotation, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।